सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर बसा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। भारत के अंदर कुछ बेहद खूबसूरत जगहों में से एक। ये रॉयल बंगाल टाइगर्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का घर भी कहा जाता है। लोगों में आमतौर पर टाइगर साइटिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन सुंदरबन के लोग ये कभी नहीं चाहते कि उनकी नज़र टाइगर पर पड़े या फिर टाइगर की नज़र उन पर पड़े। जहां भी ह्यूमन और वाइल्ड कोएग्जिस्ट करते हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है। चाहे वो सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ हो या फिर सुंदरबन। बीते 50 सालों में सुंदरबन में बाघों के हमले से अब तक 3000 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। सुंदरबन में जीवन यापन के लिए लोग या तो मछली पकड़ते हैं या मैंग्रोव जंगलों में जाकर शहद निकालते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर टाइगर अटैक के संभावित खतरों के बीच जीते हैं। बाघों के हमले ने सुंदरबन की कई महिलाओं को विधवा बना दिया है। सुंदरबन जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में यह संभावित है, मगर जो महिलाएं अपने पति की याद में पूरा जीवन गुजार देती हैं, उन्हें यहाँ का समाज एक अलग नाम देता है, स्वामी खेगो, यानी अपने पति को खा जाने वाली महिलाएं। लोग मानते हैं कि पत्नी में कोई अशुभ या अपवित्र गुण है, जिसकी वजह से उसके पति को बाघ ने खा लिया। परिवार और गांव वाले उन्हें अशुभ मानकर अलग थलग कर देते हैं। तो आज कहानी उन्हीं महिलाओं की। ये कनिग नेता बाऊ हैं। आज से लगभग 40 साल पहले इनके पति को बाघ ने खा लिया था। इनके एक बेटे भी ठीक उसी तरह टाइगर अटैक में मारे गए थे। जंगले दुखे জ্বালা कुछ कुछ বাচ্চা ফেলেছি, পেটের দায়, জায়গা জমি কিচ্ছু নেই, পেটের দায় জঙ্গলে মাছ ধরতে যায়, যে খালপাটা করে মাছ ধরতে যে মাছের নাই ধরে তুলতে হবে, তো এর যখন তুলতে গেছে তখন ঘাড়ে এসে ধরে মেরে ফেলে। আমাদের কিচ্ছু নেই, কাউ কচি কচি বাচ্চা, ওই আবার একটা কোলের বাচ্চা বড়টা মরে গেছে। আমি মানুষনি বাবা, আজ 30-45 বছর স্বামী হারা হলে তাদের কি হয়, বাচ্চাদের কাছে মানুষ করে পুকুরে পানার কিনারা আছে, আমার কিনারা ছিল না। আমি ওদের মানুষ করেছি, যা খেয়ে না দিয়ে মানুষ করে ওই কচিটার কাছে আছে। মেজোটার ঘর ওই, বড়টার ঘর ভিতরে। আমার বড় ছেলেটা মারা গেছে, তার এমন রোগ হয়েছে, লাখ লাখ টাকা খরচ করেছে। আমাদের ছেলে করেছে ট্রলারে, যে সে কাকদ্বীপি ট্রলারে যায় আমাদের ছেলে, মাছ কাঁকড়া ধরে খায়। এই বউ বেটা চলে গেছে কাঁকড়া ধরতে, মেজোটা। 3টে ছেলে, সে ঘরে নি, সে থাকলে সব বলতো। এইরকম করে আছি বাবা, কি করব বল। कनिग नेता बाऊ कहती हैं कि उनके पास जमीन नहीं है। अगर घर के लोग जंगलों में नहीं जाएंगे तो परिवार भूख से मर जाएगा। চায় না বাবা, কিন্তু না গেলে ওদের পেট চলবে না। এই মাস গেলে 2000-3000 করে টাকা। ওই যে ছেলেটা বসে আছে, মনে হয় আমার নাতি, আমি দেখা পাইনি। ওর এই কালকে রোজ আসবে, 2000 টাকা রোজ আসবে। কোথায় পাবে বাবা বল, জায়গা নেই, জমি নেই, কী করবে ওর বাবা তাই বল। কিন্তু ওই গেলে জীবনটাকে হা করে, সারা দিন রাত ওদের জন্য জীবনটা পড়ে আছে। এই দুটো গেছে, বউ গেছে, ছেলে গেছে, তাদের জন্য এই জীবনটা ফেটে যাচ্ছে। আর কোনো সাহায্য সুযোগ পাইনি বাবা, কিচ্ছু পাইনি। ওই তোমাদের মতো কারা এসে হাতে একটা কাপড় দিল, হয়তো এক সাঁজ খাওয়ালো, ওই খাই থাকি, কী করবো, যা দেয়। আর কোনো সাহায্য সুযোগ পাইনি বাবা। सुंदरबन में सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। हजरा लश्कर के पति आज से 25 साल पहले टाइगर अटैक का शिकार हुए थे। जब वो नदी किनारे मछली पकड़ने गए, तभी टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया। मगर बच्चे पालने की जिम्मेदारी ऐसी कि उन्होंने खुद वो काम शुरू कर दिया जिसमें उनके पति की मौत हुई थी। নদী মাছ ধরতে গেছিলো, এবারে ওই হচ্ছে যে সাইডে উঠে জ্বালান নিচ্ছিল, বাঘে এসে আক্রমণ করেছে। তা করলে হচ্ছে কি, এবারে হচ্ছে কি এই পর্যন্ত জানি। এবার বাড়ি নিয়েছিল, বাড়ি নিয়ে আসতে এবারে হচ্ছে কি আমরা দান ফান সব করা হয়েছে। তারপরে তা আমাদের এই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের এবারে ধর মান করতে হয়েছে, আর এর বাড়ি কাজ করতে হয়েছে, তার বাড়ি কাজ করতে হয়েছে, আমার নদী মাছ ধরতে হয়েছে। তখন কাঠ কাটা আর তো ছিল নি, মাছ ধরা, কাঁকড়া মাছ ধরে সব বাচ্চাদের মানুষ করতে হয়েছে।
আমাদের সংসার আমাদের এখন চলছে, এই এখন একটু কাজকামও করি, লোকের বাড়ি এর বাড়ি তার বাড়ি কাজ কাম করে চলছে আমাদের, আমার জীবন নির্বাহ যেতে হচ্ছে। আর বাচ্চাটা বড় হচ্ছে, একটু বড় হচ্ছে, বাইরে খাড়াখানি করতে যায়, করলে একটু কোনো রকম চলছে তা আমাদের খুব একটু একটু কষ্ট মতন যায় একটু আর কি। তাই এবার কষ্ট হলে করবো কি রাখি। अब ये काम उनके बच्चों ने संभाल लिया है, क्योंकि अगर यहीं रहकर कुछ करना है तो जीवन यापन के लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। মাছ ধরতে যায় আছে, এবার ভয় ভয় করে, নদীর এবারে যায় ভয় ভয় করে। ভয় জায়গায় গেলে ভয় লাগবে না, সব ঠিক ভয় লাগবে। আমার ছেলে একটা আছে, ছেলে যায় ওই নদীতে মাছ ধরতে, তাই এবার চারিদিকে বন, মধ্যখানে নদী, এত ভয় তো থাকবে তো। हजरा लश्कर बताती हैं कि उन्हें पति की मौत का मुआवजा कभी नहीं मिला। पहले कुछ सरकारी मदद मिलती थी, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया गया है। কিচ্ছু না, ওই তো বলতেছি তো, আমাদের এই পর্যন্ত 100 কেনাল নাম লিখেছে, কিন্তু আমরা কিচ্ছু পাই না, কিচ্ছু পাই না আমরা। একটা ঘর বলো কি একটা ইয়ে বলো, আমরা কোনো কিছু পাই না। আর আমরা মিথ্যে কথা নয়, হচ্ছে কি আমি একটা ভাতা পেতাম, সে আবার সে ভাতা আবার সে বন্ধ করে দিচ্ছে, কী করছে আমি বলতে পারছি না। गांव के लोग यहाँ शाम ढलते ही खाना खाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि शाम के समय वाटर स्ट्रीम कम होने की वजह से बाघों के लिए गांव तक आना जाना आसान हो जाता है। এবার কি কারণে সে বলি, এবারে ধর বাঘ আইরা চারিদিকে ফাঁকার ঘর, এবার বাজার মধ্যখানে, আর কেউ যদি বা ইয়ে করে তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি হয়তো খেয়ে শুয়ে পড়ি, ভয় লাগে। मेरे ठीक पीछे जो आप एक वाटर स्ट्रीम देख रहे हैं, उसके उस पार एक डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे बड़ा हैबिटेट है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ से रहवासी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अभी जो समय है वो भाटा का है, यानी कि वाटर स्ट्रीम आपको लगातार पतली और छोटी होती हुई दिखाई देगी, और अभी जितना आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं उसकी लगभग 1/4 हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर सबसे अच्छे स्विमर्स होते हैं, तो ऐसे में जब वाटर स्ट्रीम पतली होती है तो शाम के टाइम में या रात के टाइम में जो टाइगर के मूवमेंट का समय होता है वो कई बार रहवासी क्षेत्र में आ जाते हैं, और इसकी वजह से ही ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस किनारे पे जो गांव है, जहां से ये गांव पूरे शुरू होते हैं, वहां पे इस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। तपोती दंडवत के पति की मौत केकड़ा पकड़ने के दौरान हुई थी। 30 दिसंबर 2023 को उनके पति पर टाइगर ने अटैक कर दिया, तो वो खुद अपने घायल पति को नदी से उठाकर गांव के एक डॉक्टर के पास ले गई। 30 ডিসেম্বর নদীতে কাঁকড়া ধরতে যায়। নদীতে কাঁকড়া 30 ডিসেম্বরই সন্ধ্যেবেলা মানে নদীতে লাভার সঙ্গে সঙ্গে বাঘে কামড় দেয়। বাঘে কামড় দিতে ওনাকে বাড়িতে এনেছিল, তখন জীবন্ত ছিল, তখন বাড়িতে এনেছিল। বাড়িতে আনতে সামনে আমাদের এই ডাক্তারবাবু ছিলেন গর্ষিত, ওনার কাছে দেখাতে উনি বলছে যে আমি পারবো না, ওনাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়ি ভাড়া করে কলকাতায় নিয়ে যাই। সেখানে নিয়ে যেতে সেখানেই মারা যায় উনি, 1 জানুয়ারি মারা যায়। এখন সংসার একটা ভাতা পাই আমি, বিধবা ভাতা একটা দেয়, ওই 1000 টাকা দেয়। তারপরে পরের বাড়িতে কোনো রকম সংসার চালিয়ে কাজ করে সংসারটা চালে এই পর্যন্ত। इनके पति को गुजरे 3 साल बीत गए, लेकिन बाघ का डर इनके दिमाग से अब तक नहीं गया है। देर शाम के बाद अक्सर बाघ इनके घर के पीछे आ जाता है, कई बार गांव के किसी तालाब का मीठा पानी पीने। এই সামনে ডিসেম্বরের 16 তারিখে বাড়ির পাশে একজনকে এরকম বাঘে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল, তাকে খেয়েছে। হয়তো আমাদের নদী সাইডে বাড়ি, এমনিতে ভয় লাগবে। বাঘ আমাদের সামনে থেকে ঘরের পেছনে আসছে, দরজা খুলতে পারছি না, ফোন করছি ফরেস্টারকে, ফোন করছি, ফোন টোন করলে তারা এসে আবার। হ্যাঁ আমি বাঘ দেখেছি, আমিও নদীতে কাঁকড়া ধরতে যেতাম, মাছ ধরতেই যেতাম, আমি বাঘ দেখেছি। খুব আতঙ্কে আমাদের মানে জীবনযাপন করতে হয়, প্রচুর আতঙ্ক। বাঘটা সন্ধেবেলা আসে, ওরা রাত্রে নদীর জোয়ারে খেয়ে আসে। এবার জঙ্গলের আমাদের নদীর সাইডে আমাদের মানে পুকুর আছে, মিষ্টি পুকুর আছে, ওইগুলো জল খেতে আসে। জল খেতে আসলে সকালে দেখবো বাঘের পর বা গর্জন দিচ্ছে, উনি ডাকছে।
नगीनाबाद की रहने वाली जरीना शेख के पति को बाघ नदी के किनारे से घसीटकर जंगलों में लेकर चला गया था। तब उनके साथ परिवार के और लोग भी थे, लेकिन वो बचा नहीं पाए। 20 নম্বর জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল, গিয়ে বাঘে আক্রমণ করে নিয়ে চলে গেছে, বাড়ি আনতে পারিনি। সঙ্গে আর কেউ ছিল? সঙ্গে আমার পাড়ার লোক ছিল, শ্বশুর ছিল, দেওররা ছিল, এরকম ছিল। তারা ছাড়াতে পারেনি? পারেনি। 20 নম্বর জঙ্গলটা কোথায়? ওই তো এটা। আপনাদের সামনেই জঙ্গল? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো ওখানে কিসের জন্য গিয়েছিল? মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। অভাবে খুব জায়গা জমি নেই, কষ্ট, বাড়ি খাওয়া হয় না, শ্বশুরের বাড়ি খুব কষ্টই ছিল। इन सारी महिलाओं की कहानी में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि भले ही इनके पति को बाघ ने मार दिया हो, लेकिन आज भी घर के लोग मछली पकड़ने या शहद निकालने के लिए जंगलों में जाते हैं, क्योंकि इनके पास जंगल में न जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। परिवार का पेट पालना है तो ये रिस्क लेना ही होगा। ये इनके लिए कंपल्सन की तरह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2026 तक सुंदरबन में टाइगर अटैक से 21 लोगों की मौतें हुई हैं, मगर लोगों का दावा है कि संख्या इससे कहीं बड़ी होती है। कई बार वन विभाग उन मौतों को रिपोर्ट नहीं करता जिसमें पीड़ित अवैध रूप से जंगल में घुसते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और वन विभाग के नियमों के अनुसार जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। सुंदरबन के कोर एरिया में बिना बोट लाइसेंस, सर्टिफिकेट या परमिट के मछली पकड़ना, शहद इकट्ठा करना या घुसना अवैध माना जाता है। अगर मौत कोर एरिया में होती है और परमिट नहीं मिलता या बॉडी रिकवर नहीं होती तो विभाग अक्सर मुआवजा देने से मना कर देता है। कई मामलों में मौत को अवैध करार दिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर टाइगर विडोज मुआवजे या किसी सरकारी सहायता से वंचित रह जाती हैं। दो 2023-24 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई मामलों में वन विभाग की इस प्रैक्टिस को फटकार लगाते हुए मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। कोर्ट ने कहा था कि अवैध प्रवेश कानूनी उल्लंघन हो सकता है, लेकिन इससे परिवार को मुआवजे से वंचित करना अनुचित है। मगर उससे भी ज़्यादा अनुचित है किसी विधवा को अपने पति की मौत का जिम्मेदार बताना। स्वामी खेगो जैसे नामकरण न सिर्फ इन महिलाओं की मानसिक पीड़ा को बढ़ाता है, बल्कि उनके बच्चों पर भी असर डालता है। वे पहले ही पति की अचानक मौत, आर्थिक तंगी, मुआवजे की अनिश्चितता और जंगल पर निर्भरता से जूझ रही होती हैं। ऊपर से यह कलंक उन्हें और कमज़ोर बनाता है, उन्हें सामाजिक भागीदारी और सम्मानजनक जीवन से वंचित करता है। वास्तविकता यह है कि सुंदरबन के मछुआरे, केकड़ा पकड़ने वाले और शहद इकट्ठा करने वाले पुरुष मजबूरी में जंगल में जाते हैं। बाघ का हमला एक मानव वन्यजीव संघर्ष का दुखद परिणाम है, ना कि किसी महिला की गलती।